ਪਾਸੀ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 7.19% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 7.19% ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। गौरव जी बिल्कुल निराधार आधार है इन्हां दा, निराधार गल कर रहे हैं। ये BBMP नूं तुसीं चंडीगढ़ कैपिटल दे नाल नहीं कंपेयर कर सकते। हिमाचल तो जदों पंजाब पुनर्गठन एक्ट होया, हिमाचल यूनियन टैरेटरी सी। 1971 दे विच हिमाचल पूर्ण स्टेट बनया। मैं इन्हां नूं याद करा दूं, मैं इन्हां नूं इह भी दस देना कि जिहड़ा चंडीगढ़ कैपिटल बनया सी ये पंजाब दे खरड़ तहसील दे 22 पिंडां नूं लैके बनाई गई सी और इहदा मकसद भी पंजाब दी कैपिटल बनाना सीगा। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕਸੌਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1948 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸੋ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 7.19% ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? 7.19% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ। 7.19% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 7.19% ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 7.19% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 7.19%? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ 26,208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1970 ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ 3 ਚ, ਨਾ 13 ਚ, ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਚ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਚ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ मैं प्रवीण अत्री जी का रुख करदा। प्रवीण जी, हरियाणा सरकार का साथ क्या हिमाचल को मिलेगा इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, जब 60-40 की रेशो का जिक्र हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 7.19% हिमाचल को जाएगा तो कुछ हिस्सा हिमाचल में जाएगा हरियाणा का, कुछ पंजाब का। देखिए शुक्ला जी, हिमाचल की डिमांड करने से पहले कुछ बिंदुओं पे अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार की मंशा पे शक तो पैदा होता है। जो 7.19% का दावा चंडीगढ़ पे किया गया जी, अब वो आधार बना रहे हैं BBMP के अंदर पावर के हिस्से का। 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7.19 पावर शेयर जो है उसके बारे में बात कही जी। अगर हिमाचल सरकार को लगता है कि उस आधार पे उनका कोई दावा बनता है तो कोर्ट में चले जाएं। पहले भी वो जैसा कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पावर शेयर को जस्टिफाई किया है, जाइए कोर्ट में जाके वहां से डिसीजन ले लें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हिमाचल सरकार है उसकी मंशा पे शक पैदा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के जो साफ बात कर रहे थे, उन्होंने देखिए बड़ी साफ मतलब इसको कहते हैं शब्दों की चतुराई। उन्होंने शब्दों की चतुराई क्या की कि साहब पंजाब की खरड़ तहसील के गाँव पे चंडीगढ़ बना,
लेकिन एक बात बीच में से खा गए कि अंबाला जिला की खरड़ तहसील के गांव में चंडीगढ़ बना। इस बात को, अंबाला को बीच में से खा गए। अंबाला जिला कहां पे? हरियाणा में। और 1952 में जब चंडीगढ़ बना था उस टाइम तो हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट थी, बिल्कुल कोई अलग अलग नहीं थी। तो मतलब अगर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के गांव पे चंडीगढ़ बनता है तो मतलब वो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है। और 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, जिसका हवाला वो भी दे रहे थे 60 और 40 की रेशियो, तो उसमें 40% हिस्सा हरियाणा का है, 60% पंजाब का है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब विषय क्या जाता है कि जो वो 60-40 का रेशियो है, अब बार बार एक बात कह रहे थे कि साहब 5 साल के अंदर हरियाणा को अपनी कैपिटल बनानी थी, 10 करोड़ रुपया मंजूर किया। हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल हम अपनी बना लेंगे। हिंदी भाषी गांव जो हमें दिए गए थे, हमारे हिंदी भाषी गांव हमें दे दीजिए और हमारे 60-40% शेयर का पैसा दे दीजिए, हम बना लेते हैं अपनी अलग कैपिटल। हमने कब मना किया? लेकिन आप 40% जो हमारा चंडीगढ़ में शेयर है, चंडीगढ़ की एसेट्स पे जो हमारा अधिकार है, उसका पैसा दे दीजिए और हिंदी भाषी गांव दे दीजिए। तो यहाँ पे हरियाणा, और देखिए इस बात से नहीं करूंगा कि चंडीगढ़ में पंजाब का भी उतना हक है जितना हरियाणा का है, लेकिन हिमाचल सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चंडीगढ़ के विषय में कभी बात नहीं हुई है। आपके मंत्री जी का बयान थोड़ा अलग था। वो अनिल विज को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि ठीक है अदालत जाइए, वहां से जो फैसला आएगा हम उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे या होना चाहिए वो। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पावर शेयर के बारे में कहा, जिसको आप आधार बना रहे हैं, तो जाइए कोर्ट में, माननीय कोर्ट से कहिए जाके। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। थोड़ा सा कौशल जी इंतजार कीजिएगा, एक बार मैं हमारे साथ सीनियर वकील जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लें। अमनदीप जी जुड़े हुए ने साडे नाल। अमनदीप जी, पंजाब दा, हरियाणा दा, हिमाचल दा आपो अपना दावा जरूर नजर आ रहा है। ये पुनर्गठन एक्ट वाकई किस तरीके इस नजर नाल देखा जा सकता है कि हिमाचल का भी कोई हिस्सा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग गल है कि हिमाचल की कोई बॉर्डर कोई नहीं लगता, जिवें चंडीगढ़ नूं पंचकुला लगता एक पासे, दूजे पासे न्यू चंडीगढ़ मोहाली लगता है, तो हिमाचल दूर है उत्थों, तो फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि साडा 7.1% हिस्सा बनता है। सर आ मुद्दा जिहड़ा है ना, इनू समझण वास्ते सानू इहदी हिस्टरी देखनी पेगी। जिहड़ी हिमाचल प्रदेश है वो 1956 च एक यूनियन टैरेटरी बन गई सीगी। जिहड़ा ਉਹਦੀ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हुई है वो 1971 च हुई है। इन्हां दोनों डेट्स दे विच 1966 च पंजाब दा कुछ एरिया कट के हरियाणा नूं हिमाचल नूं दिता गया एंड जिहड़े रिमेनिंग पंजाब ਉਹਨੂੰ बाइफरकेट करता गया बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। नाउ दी एरिया जिहड़ा हिमाचल प्रदेश कोल गया ਉਹਦੀ पॉपुलेशन तकरीबन 7.19% ਸੀਗੀ ना। ਉਹ पॉपुलेशन ਨੂੰ बेस बनाते हुए ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਅਰਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਐਂਡ ਦੀ ਬਿਆਸ ਡੈਮ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਐਂਡ 79 ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ जिहड़ा है वो पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल है, ते जिहड़ा ओहदा बिजली दा खर्चा है, जिहड़ा बिजली दा पार्ट है, प्रोपोर्शन है, पंजाब ते हरियाणा दे हिस्से विचों कट्टिया जाए, हिमाचल दे हिस्से चों ना कट्टिया जाए। जिहड़ा बाकी दा 1966 दा एक्ट है वो हिमाचल प्रदेश नूं कोई चंडीगढ़ ते पर से राइट नहीं दे रहा, ते ओहदा एक रीजन है। चंडीगढ़ जिहड़ी है वो पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश नूं एक सैपरेट कैपिटल इन दी फॉर्म ऑफ शिमला दिता गया है। नाउ जिहड़ा ये आर्गूमेंट लै रहे ने दैट डेप्यूटेशन ते हिमाचल तो चंडीगढ़ लोग आंदे रहे ने, जिहड़ी सर्विसेज हैं चंडीगढ़ च वेरियस सर्विसेज वो आंदी है सेंट्रल गवर्नमेंट दे अंडर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दा प्रेरोगेटिव है, वो कित्थों भी लै सकदी है डेप्यूटेशन ते बंदे। देयर इज नो बार इन टेकिंग डेप्यूटेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पर वो हिमाचल प्रदेश नूं एक राइट नहीं देगा चंडीगढ़ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਦੇਖੋ 1966 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, सर्विसेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ extent- ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 7.19% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1966 ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 7.19% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਚ। ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸੈਟਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मैं प्रेम कौशल जी का रुख करांगा, पर उस तो पहला प्रेम कौशल जी, एक पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट अभी आया है, मैं उसको जरूर पढ़कर सुना देता हूं। इस बीच में अपनी टीम को भी कहूंगा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब में विपक्ष के नेता हैं, उनसे अगर हम बात कर पाए, फोन पर उनको जोड़ पाए। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, प्रेम कौशल जी ये कांग्रेस के लिए है। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार के दावे के बारे में हिमाचल के इंचार्ज प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने प्रताप सिंह भाजपा लिखा है उनको, प्रताप सिंह भाजपा जी दोनों पार्टियों का जो है पक्ष वो पेश कर दें। आगे एक शब्द लिखा गया है, शर्मदा घाटा। प्रेम कौशल जी, हम कोशिश करेंगे कि प्रताप बाजवा से भी बात हो पाए, लेकिन पॉइंट यह है कि जो आधार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हरियाणा और पंजाब दोनों के इतराज है कि आप जिस पॉइंट को लेकर आ रहे हैं वो पॉइंट कोई ज्यादा सॉलिड नजर नहीं आ रहा कि आप 7.19% आपको चंडीगढ़ चाहिए। जब हमें बीबीएमबी में 7.19% शेयर मिला सुप्रीम कोर्ट से, उस चीज को भी हरियाणा और पंजाब पहले मंजूर नहीं करते थे, और अभी भी हमारा 4,000 करोड़ रुपया जो है पंजाब से एरियर जो है वो बकाया है लेने को। तो निश्चित तौर पर पंजाब कभी नहीं चाहेगा कि हमें जो हमारे हक हैं और जो क्लैश करते हैं हमारे इंटरेस्ट आपस में, उनमें हमारे हक मिले, वो निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे। और ये फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने जो ट्वीट किया है, नहीं देखिए वो तो डिनाई करेंगे ही सर। मेरा एक और सवाल है, आप किस तरह से चंडीगढ़ में हक जता रहे हैं? 7.19% क्या चाहिए? क्योंकि ये यूटी है, क्या यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, जो 60-40 का एक रेशो है, उसमें आपको लगता है कि 7.19% हमारा भी ऐड कर दीजिए? टोटल रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर हम 7.19% जो है वो क्लेम करने की प्रयास कर रहे हैं। अभी सब कमेटी बनी है, सब कमेटी इस एक्ट के आधार के ऊपर, सब एक्ट के आधार के देखिए ऊपर जो है, जो पंजाब का तर्क क्या है सर? पंजाब का तर्क है कि जब 1966 में पंजाब के कुछ इलाके दिए गए, वो भी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा दे दिए गए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया गया। नहीं, चलिए आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी है, क्योंकि इनके हाथ से जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको लगता है कि वहां पंजाब में इनको धक्का लगेगा। अगर ये चीज जो हम क्लेम कर रहे हैं, अगर हमारा क्लेम सेटल हो जाता है और ये हक में जाता है, तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि इससे हमें राजनीतिक नुकसान होगा। तो उसको ध्यान में रख के ही बाजवा जी को भी बीच में ला रहे हैं। बाजवा जी निश्चित तौर पर, आपको उम्मीद है सर कि हरियाणा का साथ मिल जाएगा? राजनीतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो पंजाब के नेता हैं, निश्चित तौर पर वो जब उनसे आप बात करेंगे, आपको लगता है कि हरियाणा का साथ मिल जाएगा इस मुद्दे के ऊपर? आपको यहाँ किसी का साथ मिलने का प्रश्न नहीं है, यहाँ प्रश्न कानून का है, नियमों का है, अधिकार का है। और हम कोई चंडीगढ़ में कोई जबरदस्ती कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि चंडीगढ़ में जबरदस्ती हम लोग घुस जाएंगे, चंडीगढ़ के किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये एक न्याय संगत, कानून संगत और जो नियम है और एक्ट में अगर कोई ऐसा प्रोविजन है, तो उसके आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो इस दावे को जो है वो कर रही है। आप कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, सब कमेटी की जो फाइंडिंग्स है कैबिनेट में जाएंगी। उसके बाद जहां तक ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ही गई थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, और पंजाब देना नहीं चाहता था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने
19% शेयर है हमको दिया है, और उसी को आधार मानकर मतलब दिया। आप वही बीबीएमबी वाला रास्ता यहाँ भी अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए जवाब ले लीजिए एक बार। पासी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पासी जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ गौरव जी, जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, गौरव जी, मैं तो इनको एक चीज पावर पूछना चाहता हूँ। जो थे एक उनने मिनट रिलीफ इनको मांगा था, प्लीज वो भी सुप्रीम प्रेम कोर्ट ने कौशल जी, दिया। मैं चाहूंगा आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं इनको एक चीज जी। क्लियर शब्दों में बताना चाह रहा हूँ हिमाचल प्रदेश को, कि जब से हिमाचल प्रदेश बना है, क्या उसका 1 इंच भी पासी जी, मैं एरिया जो